Hello guys, all of you once again welcome to our class of English. This is our video about the article writing. In this section we will learn what is article, the format, what the steps we have to keep in mind while writing an article. So in our earlier section we have completed debate writing and speech writing. I hope that all of you are very well acquainted with the topic debate writing and speech writing. So this is the article writing. Yes, of course, article writing is a very skillful process, and in that skill you have to present, you have to publish, you have to print your views in front of the sorry you have to just present your views in a published way or in a printed way. So article is a written document, of course. Yes, it is a written work and it is published in a print or electronic media. It may be for the purpose of paragraph news, propagating news, researching result, academic analysis or debate. Yes, we can also use article for giving the news. Propagating means to lead. ठीक है, यानी कि न्यूज़ को आगे बढ़ाने के लिए भी हम आर्टिकल लिख सकते हैं. रिसर्चिंग रिजल्ट्स, किसी रिजल्ट को अगर हमें रिसर्च करना है उसके लिए भी आर्टिकल लिखते हैं. एकेडमिक एनालिसिस के लिए भी हम आर्टिकल लिखते हैं, या फिर किसी डिबेट वाले इशू के लिए भी आर्टिकल लिखते हैं. जनरली इट्स अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज़ पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन. लेकिन सामान्यतः या कॉमनली ये क्या होता है, एक राइटिंग होती है जिसको हम न्यूज़पेपर या मैगजीन में लिखते हैं, सो दैट द पब्लिक कैन ऑल्सो गेट well with our views. So in this way article writing we have learned what is the definition of article. It means what is the use of that article. It means we write the article just to inform the public what we think about the given issue. So article writing format in CBSE 11th and 12th both has the same format and containing how many marks? 10 marks. So you have to just think that it also consists of 3 paragraph in main, यानी कि mainly 3 parts is there for the article. First of all there is heading, then the byline and then the body. We can segregate body in different paragraphs then. So first of all we have to go for these 3 main paragraph, 3 main consistent of the article writing. So first of all we will talk about the heading. Of course heading means the title. The heading should be catchy and in not more than 5 to 6 words. Of course, yes, heading is the first impression. So by looking at your heading, everyone can have the view that you have well prepared your topic. So we have to give not so lengthy heading. Here we have to give maximum 5 to 6 words and minimum you can write 1 or 2 words. You can go as creative as you want with the one, just make you sure do not devote too much time on it in the exam. Of course, yes, you can write it in a different letters, I mean to say different size letters. You can make it bold, you can also underline it, but keeping the time in your mind, you will not give so much time to this heading only, because in the exam you have to write so many things, and as it is of 10 marks, so you have to write much and more. That's why it's just suggested to you that do not give so many just minutes to decorate the heading. So second thing, after writing a catchy and attention grabbing heading, you will write the byline. Byline means the writer of the article. ठीक है, it refers to the name of the person writing the article. It is generally given in the question. Of course, in the question also it is mentioned who is the writer, who is going to write, but when it is not given, you have to give any fictitious name, any imaginary name you can write it, okay? But you are suggested do not give your personal detail. It means your real name, your school, your class, you didn't have to tell. You just only tell what is given. If it is not given, you can write any fictitious name, okay? So next, in third part, body. It is the main part, because this main part is further subdivided into 3 to 4 paragraphs. So by starting, it means in the first paragraph you have to
show your potentials. It means you have to be the strong enough in the beginning of that article writing. So body is the main part, that's why you have to pay much and more attention. So now I will tell you the segregation of body of the article writing. इट मीन्स वो जो हमने बॉडी के बारे में थर्ड पार्ट के बारे में बात की उसको हम अलग से पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे. जैसे यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट पैराग्राफ, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में डिवाइड कर लिया. तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या करना है सबसे पहले. इट इज़ ऑलवेज प्रिस्क्राइब दैट यू बिगिन विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक. ऑफ कोर्स यस, बिकॉज इन द वेरी फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, द थीम. ठीक है, सो दैट द चेकर कैन हैव द व्यू व्हाट आर यू गोइंग टू राइट अबाउट. इट्स मीनिंग to be precise, it means whatever you are going to write, it should be written to the point and in a very clear cut way. Briefly tell what the article is about, giving some quotations or startling facts to arouse the interest of the readers. So in a brief way you have to write the topic, and you can also give some quotation just to start your topic, और ऑल्सो यू कैन गिव सम स्टार्टलिंग फैक्ट्स. स्टार्टलिंग मीन्स चौंकाने वाले, जो चौंकाने वाले कुछ फैक्ट हैं, ठीक है, जिनको पढ़ करके एकदम से चेकर को, रीडर को ये पता चले कि वाकई में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है. ठीक है, सो वी कैन स्टार्ट विद सम कोटेशन और स्टार्टलिंग फैक्ट्स टू. किस लिए? ताकि हम ऑडियंस की, अपने रीडर की, अपने व्यूअर की, अपने चेकर के इंटरेस्ट को जगा सकें. So after giving the introduction, after telling the theme in a very brief way, we just reach to the second paragraph. हम इसको second या third यानी कि 2 या 3 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं. Now this part can be written in either 1 or 2 paragraph. ये मैंने आपको बता ही दिया है. You are required to do a complete analysis of the subject matter in the question. Of course, yes, whatever be the information given in your question paper, you have to be very careful. Okay, and then you have to elaborate those thoughts whatever given in the क्वेश्चन पेपर. ठीक है, तो ये कहते हैं कि आपको एनालिसिस करना होगा अच्छी से जो भी सब्जेक्ट मैटर दिया हुआ है उसको. इट में इंक्लूड मतलब क्या क्या हो सकता है उसमें. उसमें आपको टाइप्स दिए जा सकते हैं कि कितनी तरह से ये प्रॉब्लम हमारी मौजूद रहती है सोसाइटी में. यू आर रिक्वायर्ड टू मैंशन द वेरियस पॉसिबल टाइप्स. ठीक है, हम जितनी ज़रूरत होगी उतने ही टाइप्स को मेंशन करेंगे कि हाँ इतने तरीके से ये फैल रही है या हमारी प्रॉब्लम इतने प्रकार की हो सकती है. Current scenario, of course yes, we have to tell the relativity of the problem with the current situation, with the current scenario. ठीक है, हमने उसको करंट सिचुएशन के साथ रिलेट करना है. किसको? अपनी प्रॉब्लम को. द प्रॉब्लम एंड वेदर आफ्टर एनी करेक्टिव एक्शन बेटरमेंट इन द सिचुएशन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड और नॉट. हमने ये भी बताना हो सकता है इसमें कि क्या क्या इसके लिए हमने रेमेडियल अपनाए थे, क्या जो हमने बेटरमेंट किए हैं सिचुएशन में, जो हमने रेमेडियल अपनाए थे उसके बावजूद कोई उसके रिज़ल्ट में फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये हम बता सकते हैं सेकंड पैराग्राफ में ही. यानी कि इसको बताने के लिए हम इंक्लूड कर सकते हैं कि क्या क्या एडवांटेज हुए हैं हमें. ठीक है, या फिर जो हमारी करंट सिचुएशन चल रही है उससे क्या क्या डिसएडवांटेज हुए हैं. ठीक है, यानी कि जो भी हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हम एडवांटेज या डिसएडवांटेज ये हम अपने सेकंड पैराग्राफ में अनाउंस कर सकते हैं. या फिर और क्या क्या कारण हो सकते हैं. कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. हाँ, यहाँ पे हमें ये बताना है कि व्हाट आर द कॉजेज ड्यू टू विच द करंट प्रॉब्लम इज अराइजिंग इन सच ए इनॉर्मस वे, या फिर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑन द सोसाइटी एंड ऑन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. ठीक है, by spotting it with the facts and data, so we cannot tell in here what is going on. We have to present some facts, we have to give some data so that there should be established a cause effect relationship. You may also write the consequences, of course yes, to show the cause effect relationship. We can also write the results. consequence मतलब उसके बाद क्या क्या परिणाम रहे हैं, क्या क्या रिजल्ट निकले हैं. Any other relevant or related information if we want to give in the second paragraph we can give. पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4, यानी कि आप इसको नंबर, अगर आपने ऊपर सिर्फ एक ही सेकंड पैराग्राफ में सब कुछ लिख दिया है तो नेक्स्ट का नाम हम क्या लिखेंगे, पैराग्राफ नंबर 3. लेकिन अगर आपने इतने सारे जितने मैंने पॉइंट बताए थे उनको 2 पैराग्राफ में बांट लिया है, सेकंड और थर्ड में, तो दिस वन इज गोइंग टू बी द फोर्थ वन. जो हमारा लास्ट पैराग्राफ होगा, चाहे आप 1 2 3 4 5 जितने भी पैराग्राफ लिखने वाले हैं लिख डालिए,
लेकिन जो हमारा लास्ट वाला पैराग्राफ होगा वो होगा कंक्लूडिंग पैराग्राफ, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंक्लूड वट यू हैव स्टार्टेड, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वट एवर बी द सिचुएशन वी हैव बिगिन आर क्वेश्चन पेपर, वी हैव टू गिव प्रोवाइड और जस्ट राइट द सॉल्यूशन फॉर दैट। कंक्लूजन निकालना बहुत ज़रूरी है। कभी भी किसी राइटिंग सेक्शन को हम ओपन एंडेड नहीं छोड़ सकते, मतलब किसी को भी हम क्वेश्चन मार्क पे नहीं छोड़ सकते हैं। Now it is to be remembered that whatever you elaborate a problem, wherever you elaborate a problem, यानी कि आपको याद रखना है जहाँ भी आपने एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, you always have to mention the steps being taken to improvise the situation। आपको हमेशा ही वो स्टेप उठाने होंगे जो कि सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कुछ सजेशंस हमने देने हैं, सजेस्ट आ फ्यू सॉल्यूशंस एज वेल, बिल्कुल सही बात है। जितने भी आपके पास सॉल्यूशन है आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो। वैसे मैंने आपको कुछ जनरल जो है सॉल्यूशन बताए भी थे, है ना। आई थिंक डिबेट राइटिंग में बताए थे या फिर स्पीच राइटिंग में, आप देखना कुछ मैंने सॉल्यूशन की। अगर आपको नहीं सूझ रहा कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं तो उसके लिए मैंने कुछ जनरल सजेशंस बताए थे कि आप वो किसी भी सिचुएशन के लिए दे सकते हो, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट वन। प्रोडक्शंस एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स मे बी इंक्लूडेड, ऑफ कोर्स यस, हम कुछ हद तक प्रोडक्शन यानी कि अंदाज़ा और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को भी इंक्लूड कर सकते हैं। दिस पैराग्राफ नीड्स टू बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, ऑफ कोर्स यस, कंक्लूडिंग पैराग्राफ को हमने शॉर्ट में और बड़े ही प्रिसाइज वे में, संक्षेप में लिखना होता है। संक्षेप का मतलब बेटा शॉर्ट नहीं होता है, उसका मतलब होता है कि हमने शॉर्ट में तो लिखना है, साथ में मीनिंगफुल वे में लिखना है। Here also you could add some glitter to your art piece with some quotes. Of course yes, आप अपनी एंडिंग को बहुत अच्छा बना सकते हो, कैसे, कोई भी कोटेशंस दे करके। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट फॉर्मेट, जैसे कि हमने आपको बताया है कि फॉर्मेट के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग वी हैव टू राइट इन कैपिटल लेटर्स, यू कैन मेक इट बोल्ड, यू कैन अंडरलाइन इट। सेकंड हमने बताया था आपको बाय लाइन लिखनी है, यानी कि जो राइटर है आर्टिकल का, जो लिखने वाला है उसका नाम लिखना है। क्वेश्चन में दिया है, इट्स गुड, नहीं दिया है तो यू कैन राइट एनी fictitious नेम। सो देन वी हैव टू राइट अबाउट द बॉडी, and further we have to segregate body into 3 or 4 more paragraphs. Okay, paragraph number 1 I also told you what you have to write in paragraph number 1, what you have to write in paragraph number 2 and paragraph number 3. Okay, let us just read some more कि in class 11th or 12th you will be given a very long type of question which carry the 10 marks. Okay, and here 2 long question answers will be given to you, ठीक है। for that, for 10 marks you have to write in 150 to 200 words. It means you will be given the different topics like article writing, debate writing, speech writing and report writing. And I am going to tell you that article writing is most important because there is no option for it, you must have to write an article in your exam. So I think between debate, speech and report you have just the choices. So now these are the marking scheme. Already I told you about the 10 marks marking scheme. It's all about the format 1 mark, content 4 mark and expression is of 5 marks, where in the expression you have to be careful about the grammatical accuracies, appropriate words and spellings, ठीक है, and coherence and relativity of the ideas and style. Okay, चलिए let us further let us have the further analysis of our format. So first of all I told you about the heading. Heading of the article should be engaging and it should not exceed more than 5 to 6 words. मैंने आपको पहले ही बताया है हेडिंग कैसे होनी चाहिए, engaging होनी चाहिए, आई कैचिंग होनी चाहिए, ये 5 या 6 से ज़्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए। मेक श्योर योर हेडिंग डजंट हैव एनी स्पेलिंग मिस्टेक, ऑफ कोर्स यस, ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। और अगर आपका इंप्रेशन शुरू में ख़राब हो गया तो आगे आप कितना अच्छा लिख लीजिए, इट कैन नेवर बी जस्ट करेक्टेड. So
Here we have to be careful that we should not write any wrong spelling or any grammatical error. Do not use unnecessary punctuation marks in the heading में जहाँ तक हो सके avoid the punctuation marks, means कोई क्वेश्चन मार्क कोई फुल स्टॉप ये नहीं लगाया जाता. हाँ कहीं कहीं एक्सक्लामेटरी ज़रूर लगाया जाता है, लेकिन वो भी वहाँ पे जहाँ पे सिचुएशन हमारी वंडर करने वाली होती है, सरप्राइज़ देने वाली होती है. ठीक है, और ये हेडिंग कितने मार्क्स की होती है, यानी कि 1 नंबर का होता है ये सब. उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने आपको बताया था यू हैव टू थिंक अबाउट द बाय लाइन. ओके, बाय लाइन मीन्स द पर्सन हु इज गोइंग टू राइट द आर्टिकल. Name of the person will generally be given in the question paper, but if it is not given, you can write the detail अबाउट योर इमेजिनेशन. ठीक है, बट डोंट गिव योर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन. देखो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर नॉट सपोज टू मैंशन एनी ऑफ देयर पर्सनल डिटेल वाइल अटेम्प्टिंग द आंसर इन द एग्जाम. ठीक है, अपनी पर्सनल डिटेल नहीं देनी है. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर थर्ड पार्ट विच इज़ द बॉडी. बॉडी को हमने फर्दर डिवाइड करना है 3 to 4 पैराग्राफ में, क्योंकि ये मेन पार्ट होता है. ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल एक सोल होता है आर्टिकल राइटिंग की. सो हमने क्या करना है, इसके अंदर सेग्रीगेशन करना है डिफरेंट पैराग्राफ का. ऑफकोर्स ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको पहले ही बता दिया है, इट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन. पैराग्राफ 1 शुड बी एक्यूरेट, बिल्कुल इसको एक्यूरेटली आपने लिखना है, बिकॉज यू हैव टू बी द स्ट्रॉन्ग इनफ इन द बिगिनिंग. प्रीशियसली एक्सप्लेन, हमने बड़ा प्रीशियसली यानी कि छोटा लिखना है, लेकिन मीनिंगफुल वे में लिखना है. ठीक है, ट्राई गिविंग सम कोटेशंस और फ्रूटफुल फैक्ट्स. हमने पहले ही कहा है कि आप कोटेशन लिख सकते हैं, आप स्टार्टलिंग फैक्ट लिख सकते हैं, आप फ्रूटफुल या फिर फ्राइटफुल फैक्ट्स लिख सकते हैं, ताकि हमारा जो रीडर है उसके इंटरेस्ट को हम क्रिएट कर सकें. ओके, लेकिन लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज का मतलब क्या है, डोंट राइट सच अ लॉन्ग सेंटेंसेस. द सेंटेंसेस विच carry 10 to 12 marks are good for you, ideal for you. Okay, do not just give 20 to 30 words in a sentence, it just create only the mashup, did have a good impact on the checker. So about the paragraph number 2 or 3, paragraph number 2 and 3 must come with a complete analysis of the subject matter in question. ओके, इसमें क्या क्या हो सकते हैं. सबसे पहले टाइप आपको बताया था पहले ही कि राइटर मस्ट एनालाइज एंड एक्सप्लेन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर एग्जिस्टिंग. ठीक है, हमने बताना है कि डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम जो हमारा टॉपिक दिया हुआ उससे रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं. ठीक है, इफ़ एनी ऑफ द प्रॉब्लम एग्जिस्ट यू शुड मैंशन हियर. हमने जितनी भी प्रॉब्लम उनको मैंशन कर देना है. करंट सिनेरियो में उनकी रिलेटिविटी क्या है, राइटर को एक्सप्लेन करना है कि करंट सिचुएशन क्या है प्रॉब्लम की. व्हाट आर द एक्शन टेकन फॉर द रेमेडीज, क्या क्या एक्शन लेगी उसको ठीक करने के लिए. ठीक है, यहाँ पे हम और क्या क्या मेंशन करते हैं कि प्रॉब्लम के क्या क्या एडवांटेज हो रहे हैं. ठीक है, जो हमने एक्शन लिए हैं क्या उनसे कोई फ्रूटफुल वे निकल रहा है या फिर वो भी डिसएडवांटेज ही लग रही हैं हमें. ठीक है, यू हैव टू क्लियर ऑल दैट. हमने कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बता देना है कि हम इस प्रॉब्लम के क्या क्या कोज हो सकते हैं, हमारे सराउंडिंग पे इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है. ठीक है, वी कैन ऑल्सो राइट द कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब रिजल्ट्स जो आए हैं कोज इफेक्ट से प्रॉब्लम बढ़ रही है उसको भी मेंशन कर देना है. पैराग्राफ नंबर 3 to 4 में हमने अच्छी सी कंक्लूजन निकालना होता है, क्योंकि जो लास्ट पैराग्राफ होता है इट शुड बी द कंक्लूडिव इन नेचर, बिकॉज वी हैव टू एंड वट एवर वी हैव started. We cannot leave any question open ended. We have to provide the solution, we have to provide the suggestions to satisfy our situation. Okay, so whatever be the action we have taken for the betterment of the problem, this should be discussed in our concluding paragraph. Okay, so it should be simple, it should be precise. So here I am going to just give you one of the examples so that you can write in a very good way. So here the situation is given to save water. Okay, are we doing enough. ठीक है, ये पूरा आपका टॉपिक है, आपको इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है. सेव वाटर आर वी डूइंग एनफ, इसके बारे में. तो सबसे पहले हेडिंग हमने लिखी सेव वाटर आर वी डूइंग एनफ. उसके बाद हमने बाय लाइन, सॉरी हियर इट इज़ नॉट रिटन, लेकिन आप लिख सकते हो बाय लाइन लिख सकते हो. ठीक है, बाय लाइन में हम क्या लिखेंगे अपना
जो लिखने वाला है यहाँ पे अगर कोई नाम दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी फिक्टिटियस नेम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बॉडी को पैराग्राफ नंबर फर्स्ट, हियर इट इज़ नॉट गिवन, इट्स जस्ट डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे स्टार्टिंग करते हो, ठीक है। मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि आप इसको खुद लिखो। सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या देना है कि इसकी वजह से क्या 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 कारण है, कॉजेज़ क्या क्या हो रहे हैं, उसके इफ़ेक्ट क्या क्या हो रहे हैं, या फिर ये डिसएडवांटेज है या फिर एडवांटेज सिचुएशन है, क्या क्या मेजरमेंट लिए गए इसको ठीक करने के लिए। इन सेकंड पैराग्राफ वी हैव टू राइट दिस वन, ओके। ठीक है। इन सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ वी कैन कंटिन्यू विद द सेम, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द कंक्लूडिंग पैराग्राफ, यानी कंक्लूजन, वी हैव टू प्रोवाइड सम सॉल्यूशन टू satisfy the problem which we have raised in the beginning of our topic, okay। So in this way I hope that all of you are able to understand a little bit of article writing. If you have some doubt then ask me. Till then, thank you very much.